good morning. Welcome back to another vlog, and I hope you all are doing safe and sound. So, it's 6 o'clock in the morning, and I'm thinking to film a day in my life vlog today, but with a twist. तो इस वीडियो में I'm thinking to talk about 5 basic mistakes from the nutrition point of view जो हम हर दिन knowingly या unknowingly कर ही देते हैं, which can actually impact our health and well-being. So without further ado, let's get straight into the video. So I always start my mornings by having 2 glasses of lukewarm water with lemon. और जो सबसे पहली मिस्टेक होती है वो हम इसी पॉइंट पे कर देते हैं, विच इज़ एडिंग लेमन टू अ ग्लास ऑफ हॉट बॉइलिंग वाटर. So lemon is very rich in vitamin C, which is a heat sensitive vitamin, which means आप जैसे ही नींबू को हाई टेम्परेचर पे डालते हैं, चाहे वो हॉट बॉइलिंग वाटर में हो या गर्म खाने में हो, उसका vitamin C evaporate हो जाता है and it does nothing good to our body. So the next time whenever you add lemon, make sure that your water is at lukewarm temperature, which is neither too hot nor too cold. और खाने में भी आप डालें तो गैस को बंद करके make sure only then you're adding lemon. Furthermore, I have seen a lot of people adding a tablespoon of honey to this glass of lemon water, thinking कि ये जो combination है honey lemon water का, it will promote weight loss. It's not at all like that. It's a myth. In fact, just consider it yourself. Pani, which is neutral, which has no calories, right? Honey, on the other side, has exactly or almost similar amount of calories as that of regular sugar or jaggery. राइट. सो थिंक इट योर सेल्फ, समथिंग विच हैज़ कैलोरीज आप उसको अपने पानी में डाल रहे हैं एंड यू आर कंज्यूमिंग इट द फर्स्ट थिंग एट मॉर्निंग, थिंकिंग कि उससे वेट लॉस होगा. ऐसा नहीं होता. ऐसा कोई सा भी फूड नहीं है विच विल डायरेक्टली टारगेट ऑन वेट लॉस. But yes, in case if you want to detoxify or if you want to cleanse your body once in a while, maybe once in 7-10 days, you can add honey in very little quantity to this glass of lemon water and you can have it the first thing at the morning. So it's 9:30 a.m. and it is time to eat breakfast. So for breakfast, I'm having a glass of sattu water along with a katori of vegetable poha. बट इसमें क्या गलत है? हम सब लोग पोहा, उपमा, वेजिटेबल सैंडविचेस ऐसी चीज़ें ही ब्रेकफास्ट में ऑन अ रेगुलर बेसिस कंज्यूम करते हैं. बट आपने कभी सोचा है दैट व्हाट यू शुड एक्चुअली बी कंज्यूमिंग फॉर ब्रेकफास्ट? लेट मी टेल दिस टू यू. सो डिनर वॉज योर लास्ट मील, राइट? एंड यू हैवंट हैड एनी न्यूट्रिशन द इंटायर नाइट. नाउ योर बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट. अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी में क्विकली ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है. योर बॉडी ऑल्सो हैज़ एक्सेस टू फैट्स, बट द ओनली न्यूट्रिएंट दैट योर बॉडी हैजंट हैड एक्सेस टू द इंटायर नाइट इज प्रोटीन्स. So your cells are degenerating, they're depleting, and protein is required to replenish them. So having just a katori of poha, उपमा और a vegetable sandwich for the breakfast is not ideal. अगर आप वेजिटेरियंस हैं, सो यू कैन इंक्लूड अ ग्लास ऑफ सत्तू वाटर जैसे मैं कर रही हूँ, और मे बी पनीर और अ कटोरी ऑफ दही अलॉन्ग विथ योर पोहा और उपमा. दैट इज इट. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, सो मेक श्योर टू इंक्लूड एग्स इन टू योर ब्रेकफास्ट so that it becomes a well balanced meal and you're good to go. So it's finally lunch time and आज I'm having लौकी के पराठे along with a bowl of dahi. But I'm sure at some point of time हम सब ने सुना है कि हमें हर मील में खूब सारा घी खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये हमारे नी की लुब्रिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और विंटर्स में क्योंकि इतना ड्राई वेदर रहता है तो ये स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर देता है और ये फटाफट से डाइजेस्ट हो जाता है, राइट? बट सच में क्या हमको इतनी क्वांटिटी में घी खाना चाहिए? So let me tell you about it. Ghee is also a source of saturated fat, which means ghee में भी additional calories है,
एक टेबलस्पून घी में 150 कैलोरीज मिलती है। तो जस्ट इमेजिन अगर आप अपने हर मील में ये एक्स्ट्रा 150 कैलोरीज कंज्यूम करने लग गए तो आप 450 एक्स्ट्रा कैलोरीज पूरे दिन भर में नोइंगली कंज्यूम कर रहे हैं। सो घी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उतना ही कि जितना आपने चपातीस पे लगा लिया या कभी कभी कुछ सब्जियों को थोड़े घी में आपने बना लिया, बट एडिंग दैट एक्स्ट्रा डॉलप ऑफ घी इन योर खिचड़ीज या चावल में ऊपर से, या भर भर के पराठों को घी में बना रहे हैं, या फिर तड़का लगाने के बाद भी घी ऐड कर रहे हैं दाल में, इट्स अ वेरी अनहेल्थी प्रैक्टिस। इतनी कैलोरीज आप एक्स्ट्रा अगर हर दिन कंज्यूम करने लग गए तब डेफिनेटली आपके नीज पे प्रेशर बनेगा और बहुत दिक्कत होगी। सो थिंक अबाउट इट। So it's 5 p.m. and now it is time to enjoy the evening chai. And honestly, nothing could be as comforting as this cup of hot adrak chai, especially in this weather. And uske saath I'm also having thoda sa roasted chana. So I've heard a lot of people saying or rather claiming it कि आपको चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, स्पेशली तब जब आप वेट लॉस पे फोकस कर रहे हो। बट क्या आपको लगता है कि एक चाय के कप से इतना इम्पैक्ट पड़ता है आपके वेट पे? नो, नॉट एट ऑल। इट इज़ द स्नैक्स, जो बिस्किट्स, नमकीन, मठरी, कभी ज़्यादा ही इंडल्ज होने का मन किया तो पनीर पफ और ऐसी चीज़ें होती हैं विच आर द रियल स्टोर हाउस ऑफ फैट कैलोरीज, जो डेफिनेटली इज़ द रीज़न बिहाइंड यू पुटिंग ऑन दैट एक्स्ट्रा वेट। एंड ऑनेस्टली 1 टीस्पून ऑफ शुगर जो कि हम अपनी चाय में डालते हैं, इट इज़ गिविंग यू जस्ट 20 एक्स्ट्रा कैलोरीज विच इज़ फार मोर हेल्थियर देन दीज 300 कैलोरीज जो आप अननोइंगली या नोइंगली कंज्यूम कर लेते हो। So to conclude with, I personally feel that these small little things, they do make a lot of impact on your health and overall well-being. So on this note, I hope you found this video really useful, and thank you so much for being so patient, and I'll see you in the next one.